अब तक हमने देखा थॉमसन एंड रदरफोर्ड मॉडल। अब हम देखेंगे बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। In 1913, Bohr proposed an atomic theory of hydrogen atom to overcome drawbacks of Rutherford model as well as to explain structure of atom. Bohr theory was based on linear spectrum as well as Planck's quantum theory. Postulates of Bohr atomic theories are: बोर ने रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए और एटम को एक्सप्लेन करने के लिए स्पेक्ट्रम थ्योरी और प्लैंक थ्योरी के बेस पर कुछ पॉस्टुलेट दिए, कुछ 6 पॉस्टुलेट दिए, उनको अब हम देखते हैं। तो नंबर 1, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ एंड दिस सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड बोर ऑर्बिट or Bohr cell, and these are nominated by K, L, M, N and so on. न्यूक्लियस के बाद जो पहली सेल होती है उसे K, उसके बाद L and M and N, और इसके लिए इन्होंने क्वांटम नंबर भी दिया। फॉर K N equal to 1, for L N equal to 2, M 3 and 4 and so on. So पहला पॉस्टुलेट था कि all electrons revolve around sun around the nucleus in circular path. Second, in any Bohr orbit, the angular momentum of any electron is constant, which is equal to mvr equal to nh upon 2 pi. मतलब कि किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है। पर्टिकुलर सेल के लिए, अलग अलग सेल के लिए अलग अलग होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर सेल के लिए इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो फिक्स है, and that is given by mvr equal to nh upon 2 pi, where n is number of cell, h is Planck constant, and we know that what is 2 and what is pi. Third, radius of each Bohr cell. According to that, the Bohr cell is also radius of Bohr cell is also fixed. मतलब कि पहली सेल की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, दूसरी की कितनी होगी, तीसरी कितनी होगी, फॉर एनी एटम इट ऑल्सो फिक्स, एंड द रेडियस कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. My dear, that was the only for hydrogen atom. If we talk about for other atoms, radius will be n square h square upon 4 pi m e square into z, where z is the atomic number. So for hydrogen z is equal to 1, that's why we have kept it here z. बोर ने केवल हाइड्रोजन के बारे में बताया था, we have just mentioned here additionally. फोर्थ पॉस्टुलेट में बोलते हैं कि एनर्जी ऑफ ईच सेल इज ऑल्सो फिक्स फॉर एनी बोर ऑर्बिट, and that can be determined as equal to minus m e raised to power 4 upon 8 n square epsilon naught square into h square. Again my dear, for other atoms here it comes z square. Okay, so next point, that velocity of each electron is also constant for Bohr orbit. It can be determined as v equal to 2 pi e square upon nh into 4 pi epsilon naught. For other atom the z comes in numerator. And the last one, the sixth one, according to Bohr, when an electron revolves in any particular orbit, then its energy is fixed. Neither it absorbs energy nor emit energy. But when electron moves from lower cell to higher cell, then it absorbs energy, which provides absorption spectrum. While when electron moves from higher cell to lower cell, then it emits energy, which provides emission spectrum. When electron moves from one cell to another cell, then amount of energy absorbed or emit can be calculated by del E equal to E2 minus E1. तो माय डियर, इन 6 पॉस्टुलेट में बोर ने क्या कहा? सबसे पहले कहा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। नंबर 2 इन्होंने क्या कहा कि हर एक सेल के लिए एंगुलर मोमेंटम फिक्स है, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, रेडियस फिक्स है, दैट इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम ई स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एनर्जी फिक्स है, दैट इज ई इक्वल टू माइनस एम ई 4 8 एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर
वेलोसिटी फिक्स है, दैट इज 2 पाई ई स्क्वायर अपॉन NH 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड जो 6 पॉइंट भी उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा कि जो आपका एनर्जी फिक्स है, हर एक सेल के लिए क्या है, एनर्जी फिक्स है। मतलब कि जबकि रदरफोर्ड के मॉडल में ऐसा नहीं कहा गया, तो उन्होंने कहा था ये मूव कर रहा है तो एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। जब तक कोई इलेक्ट्रॉन किसी सेल में मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी फिक्स होगी, लेकिन जब वो ट्रांजिट करेगा, मतलब कि एक सेल से दूसरे सेल में या दूसरे सेल से पहले सेल में आएगा, तो वहां एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट करेगा। अब कब एब्जॉर्ब करेगा और कब एमिट करेगा, तो हम जानते हैं अगर हमें लोअर सेल से हायर सेल में जाना है, मतलब कि हम खुद अपनी क्लास की बोलें कि अगर मुझे 10th से 11th में जाना है तो व्हाट वी हैव टू टेक, मुझे एनर्जी को रिलीज करना होगा, एनर्जी को लेना होगा, एनर्जी को गेन करना पड़ेगा, मुझे मतलब क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लेनी पड़ेगी। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर सेल से हायर सेल में जाता है तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, और जब वो हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है, एमिट करता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल से आता है तभी इलेक्ट्रॉन एनर्जी का रिलीज या एब्जॉर्ब होती है, और इस एब्जॉर्ब या रिलीज एनर्जी से ही स्पेक्ट्रम बनते हैं, ठीक है। और ये एनर्जी कितनी होती है, दैट इज अगर यहां से यहां आया तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी के डिफरेंस, दैट इज E2 माइनस E1 के इक्वल बनती है। अब हम इन्हीं पॉस्टुलेट में अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, दैट R इक्वल टू N स्क्वायर H स्क्वायर, तो हम इसको कैसे लर्न करेंगे, तो दैट फॉर दैट वी विल डिराइव दिस फॉर्मूले, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द डेरिवेशंस ऑफ ऑल द postulates and their numerical practice.